हेलो फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो के माध्यम से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 8 एवं क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करना सीखें। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? A train travels 360 km at a uniform speed. This is the distance traveled by the train at uniform speed. If the speed had been 5 km per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. Let the speed of the train be x kilometer per hour. As it is unknown, so we have supposed it as x kilometer per hour. Distance covered by the train, it is given 360 km. So time taken by the train covering this distance at the speed of x kilometer per hour is equal to distance upon speed. Distance is 360 km, speed is x. (360 by x hours). Now, new speed of the train x plus 5 किलोमीटर पर आवर। अब अगर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर पहले की तुलना में ज़्यादा होती, मीन्स अब उसकी स्पीड अगर x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, तो सेम डिस्टेंस को कवर करने में समय कम लगेगा और उसकी वैल्यू उसे हम T2 सपोज कर लेंगे एंड दिस वाज T1 by the same formula 360 by new speed which is x plus 5. Clearly T1 will be greater than T2 and their difference is given as 1 hour. क्योंकि पहले की तुलना में अब जो समय लगता है इस बढ़ी हुई स्पीड से वो 1 घंटा कम लगता है। पहले अगर 10 घंटे लगता था तो अभी 9 घंटे लगता है। मीन्स इफ T1 is 10 hours then T2 is 9 hours. It means T1 minus T2 is given 1 hour. Putting the values and forming the quadratic equation, taking 360 common, 1 upon x minus 1 upon x plus 5, it is equal to 1.
LCM is of x and x plus 5. So x plus 5 minus x minus plus cancel. So in this way we have 360 multiplied 5 is equal to x plus 5. यहाँ पर हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर दिया हुआ है. 5 0 0 5 6 30 और इस तरीके से ये प्रोडक्ट मिलता है जिसे हम इस तरीके से भी ट्रांसफ़र करके कांस्टेंट टर्म को क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरीके से लिखा जा सकता है. अब इसे सॉल्व करना है x के लिए, तो किसी भी मेथड का इस्तेमाल करते हुए हम इसे सॉल्व कर सकते हैं. यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला, here a is 1, b is 5 and c is minus 1800. So d is b square minus 4ac, b is 5 square minus 4a and c is minus 1800. So this gives 7225, which is greater than 0. It means it has two distinct real roots. Minus and b is 5 plus minus under root 7225 by 2 into 1. Minus 5 plus minus and the square root of 7225 is 85. Taking positive value we get this, and taking negative value we get this. So ultimately this gives 80 by 2 and this is minus 90 by 2. So 40 and minus 45. Since this is the speed and which is not negative, so this will be rejected, and therefore speed of the train is equal to 40 km per hour. Now question number 9. Two water taps together can fill a tank in 9 times 3 by 8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. यहाँ पर दो प्रकार के वाटर टैप्स हैं, एक का डायमीटर ज़्यादा है और एक का कम है. ज़्यादा डायमीटर वाला टैप टैंक को छोटे डायमीटर वाले टैप की तुलना में 10 घंटे कम लेता है टैंक को भरने में. Find the time in which each tap can separately fill the tank. Let the time taken by the tap with larger diameter to fill the tank separately. अकेले टैंक को भरने में मान लिया कि वो x आवर्स लेता है. Then the time
taken by the tap with smaller diameter to fill the tank. अगर यहाँ पर लार्जर डायमीटर वाला टैंक x आवर लेता है तो स्मॉलर डायमीटर वाला टैंक टेप x + 10 आवर्स लेगा। क्योंकि लार्जर डायमीटर वाला जो टेप है वो 10 घंटे कम लेता है, इट मीन्स स्मॉलर डायमीटर वाला टेप 10 घंटे ज़्यादा लेता है। अगर हम यहाँ पर स्मॉलर डायमीटर वाले टैप की टाइमिंग को x आवर्स लेते तो लार्जर डायमीटर वाले टेप की टाइमिंग x - 10 हो जाती। नाउ अगर इन टेप्स को सेपरेटली 1 आवर के लिए ओपन किया जाता है तो टैंक का कितना पार्ट फिलअप हो जाएगा। पार्ट ऑफ द टैंक filled by the tap with larger diameter in 1 hour is equal to 1/x, and similarly part of the tank filled by the tap with smaller diameter in 1 hour will be 1/x + 10। ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि मान लीजिए हम कोई बुक है उसे 4 डेज़ में कंप्लीट कर लेते हैं। रीडिंग ऑफ द बुक ऑफ ए बुक इज़ कंप्लीटेड इन 4 डेज़, देन द पार्ट ऑफ द बुक कंप्लीटेड इन 1 डे विल बी 1/4। जो टोटल टाइमिंग होती है वो नीचे आ जाती है और इस तरीके से हम यूनिट टाइमिंग का वर्क डन निकाल लेते हैं। अब अगर इन दोनों ही टेप्स को साथ साथ खोल दिया जाए तो टैंक का कितना हिस्सा भर जाएगा। नाउ पार्ट ऑफ द टैंक filled by both the taps in 1 hour. Clearly this will be 1/x + 1/x + 10। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल इन 9 × 3/8 आवर्स। अगर ये पूरा कार्य को समाप्त करने का पूरी टाइमिंग 9 और 3/8 आवर्स है तो 1 घंटे में इनके द्वारा भरा गया पार्ट वो 1/9 × 3/8 हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से किसी बुक को 4 डेज़ में कंप्लीट कर लेते हैं रीडिंग करना, तो 1 डेज़ में उस बुक का 1/4 पार्ट कंप्लीट कर सकेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर दोनों वाटर टैप्स पूरे टैंक को 9 और 3/8 आवर्स में कम्प्लीटली फिल करते हैं तो उनके द्वारा 1 घंटे में फिल किया गया पार्ट 1/9 × 3/8 टाइमिंग नीचे आ जाती है।
इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर दोनों साइड में पार्ट ऑफ द टैंक है which is being filled by both the taps in 1 hour, so they will be equal. By taking the LCM of x and x plus 10, we get like this. Taking 2 common from this numerator and cancelling out this with 8, by performing cross multiplication we get 4x square minus 35x minus 375 is equal to 0, which is a quadratic equation in x and to be solved for x. तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म 375 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया है और उसके बाद उसके फैक्टराइजेशन 4 का 2 इंटू 2 हो गया और 375 का 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 जो कि लिखा हुआ है। अब इसके दो ग्रुप बनाने हैं। मेथड ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, हम इसमें मेथड लगा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। तो इसमें एक ग्रुप यहाँ से यहाँ तक बनाया गया है जिनका प्रोडक्ट 60 है और दूसरा 5 इंटू 5 25 है एंड 60 माइनस 25 गिव्स 35. सो दिस विल बी रिटन एज 4x स्क्वायर माइनस 60x प्लस 25x माइनस 375 इज इक्वल टू 0. यहाँ पर 4x कॉमन है तो x माइनस 15x प्लस 25 इज कॉमन, सो x माइनस 15, सॉरी यहाँ पर x नहीं आएगा और इज इक्वल टू 0. फर्दर 4x प्लस 25 एंड x माइनस 15, ये फैक्टराइजेशन हो गया इसका। अब आगे these factors whose product is 0 implies that either this is 0 or x minus 15 is equal to 0 and this gives x is equal to minus 25 by 4 and this gives x is equal to 15. Since x is the timing which cannot be negative, so this will be rejected and this is the required time 15 hours taken by the tape with larger diameter to fill the tank separately. Thus, the time taken by the tap with larger diameter, जिसे हमने x सपोज किया था, उसकी वैल्यू 15 आ गई and time taken by the tap with a smaller diameter to fill the tank separately will be x plus 10 hours. Means x plus 10 means x is 15 plus 10 is equal to 25 hours. These are the required answer. इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि दोनों ही प्रॉब्लम आपको समझ में आई होंगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।